हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स लेक्चर। जैसे कि हमें पता है हमने एक नया चैप्टर शुरू किया है हमारे प्लेलिस्ट में, दैट इज़ फोर्स। ठीक है, इसके पहले हमारा एक लेक्चर हो चुका है फोर्स का। तो अगर आपने वो पहला लेक्चर नहीं देखा होगा, बिकॉज इट वॉज ऑन बेसिक, कम्प्लीटली डिपेंड ऑन बेसिक, इन विच the basic terms which you will be required for further lectures. Okay, so please be sure that you have watched the completely first video of this series, that is fourth chapter. Okay, so we are on the second part of the fourth chapter. So let us start with our chapter. Let us recall something that we have learned before. Okay, let me tell you one thing, that today's lecture is very much more important than the previous one, because previous was important because it was on basic part, but today's lecture is completely on the application, and we know that the physics is completely based on the application. Theoretical, we have to learn some theoretical concept and we have to apply it. Okay, so physics is all about application. So today we will be seeing the application of the concept that we have learned in the first chapter. Okay, so be ready with your first part, that you have be sure that you have watched the first part of this lecture. Okay, the basic terms, the basic terminology, the explanation that I have told you, for the way I have explained you, please make sure that you have made some notes of that, you have revised it, you have cleared the each and every concept, the minute concept that I have told, that we will be required in the further classes. Okay, so let us start today our lecture with the second part of the fourth chapter, and let us recall something. Okay, so the first question arises, as I have asked before also, that what is the force? In this smaller class, when we were in 5th, 6th, 7th standard, we have learned that force is just a push and pull. We have learned such kind of definition. Our teacher have told us that force is a, what is a force? That is push or pull. Okay, after that we have passed, we have grown bigger, and we have started with a new concept, that by applying force, the resultant of the force. So push और pull तो force होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है? फोर्स के वजह से हमने देखा, हमने पढ़ा है कि फोर्स के वजह से, ड्यू टू फोर्स, द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मतलब यहाँ पे तीन कंसेप्ट है। ठीक है, जो फोर्स का रिजल्ट होता है वो तीन तरीके से आपको दिखाई देता है। सबसे पहला कि शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज होगा, दूसरा साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज होगा, दैट इज शेप एंड साइज चेंज होगा, और तीसरा ऑब्जेक्ट विल डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मतलब ऑब्जेक्ट क्या होगा? मोशन में आएगा। जब भी आप फोर्स अप्लाई करते हो, लेट मी क्लियर दैट फोर्स शुड बी अनबैलेंस्ड। ठीक है, अगर अनबैलेंस्ड फोर्स है तभी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अगर हम कहते हैं कि अनबैलेंस फोर्स का मतलब क्या होता है? अनबैलेंस फोर्स का मतलब होता है, कुछ इस तरीके से समझिए, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, इस तरफ से हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं from towards right hand side, that is of 10 Newton. Let us consider the force applied from the right hand side is 10 Newton. तो right hand side की तरफ, ठीक है, if you apply the same quantity of force on the left hand side in the direction of left hand side of the same magnitude, that is 10 Newton, so this is balance force. देखिए दोनों तरफ से left and right force as balance, they can cancel out each other. So this is the example of balance force. If I am talking about unbalanced force, then there is an object. Okay, we are applying the force on the right hand side. Let us consider of the same magnitude, that is 10 Newton, but no force to counter it. But there will be no force to counter it. So this kind of force is known as unbalanced force. This is unbalanced force. Okay, and this is balanced force. Hope so I am clear. So unbalanced force causes displacement, or you can say distance, or you can say moment. Displacement, or you can say moment, motion, oh sorry, let me clear it, motion. It causes motion, not moment, it causes motion of an object, motion of an object. Okay, so if you want to displace, or you want to put any object in a motion, you have to provide unbalanced force in any of the direction in which you want the displacement or the motion for that object. Okay, so this was the basic part. The next that we have learned what is a force. We have seen that there are two types of force, contact and non-contact force.
I have told some examples of contact and non-contact force. Let us see a quick revision. So these are the contact force example, that is applied force, spring force, drag force, frictional force and normal force. I have explained in the previous class, so you can refer to that. What I have explained in detail: magnetic, electric and gravitational non-contact force. Okay, after that our just syllabus deals with a linear, that is translational motion. What is linear motion? A quick revision: linear motion in which every particle of an object moves in a same direction, that is in a straight direction. Okay, this is linear motion. What is linear motion? Unrepeated object continues to move in a straight line indefinitely. Okay, this was linear. What is rotational? When an object moves, like example of Ferry wheels, bicycle wheel, merry-go-round and etc. Some examples of this. So you can see over here rotational motion, you can see clearly, it is visible. See, this is translational. Object is not revolving. You can see the graphics of this ball. See, this is the upper part, this is the upper part. So graphics are same, means ball is not revolving, it is moving from one point to another, one point to another. But in rotation, you can see they have shown the arrow that object is rotating, object is moving along its axis. If I am drawing like axis over here, if I am saying this is the axis for this ball, it is revolving around its axis. When this both the motion work combinedly, that is translational and rotation, this is the combination. Object is moving from one point to another and with a combination of rotation along its axis. Means there is a combination of rotation and linear. That is translational motion. Then we have discussed the torque, very important factor, very important, that we have discussed about torque. This will be more important, most important thing which we will be requiring in further classes. That is torque. Torque को क्या होता है? Force into lever arm. What is lever arm? Lever arm, you can say it's perpendicular distance. Lever arm, you can say perpendicular distance. Okay, so this is the formula for torque. This is the notation. Okay, this is the notation for torque. This is force and this is lever arm, or you can say distance. See, you can say lever arm, distance. Okay, over here it is force. Let me mark this. This is force. This is torque developing. This is perpendicular distance. Okay, clear? Couple. What is a couple? It is an equal. The most important. This is the favorite part of an examiner, to ask a question. So make sure that you make notes for the couple in a better way. Okay, so what is a couple? Force acting on a body are equal in magnitude. The important keywords I am underlining: equal in magnitude, opposite direction and acting parallel to one another but along the same line. So these are some keywords. These are very important keywords that you have to mention while writing the definition of a couple. Okay, there is equal magnitude, opposite direction, acting parallel to one another but along the same line. So these are some keywords. Always remember, you have to use keyword while writing a definition. It makes a definition very soothing and proper, and there will be no chances for deduction of marks. Okay, so make sure you completely use this keyword. Okay, the next, the last slide that we have learned in the last class. Condition for equilibrium: resultant force acting on the body should be zero. Resultants means the force which are acting on the inward and outward direction, or you can say clockwise, anti-clockwise and so on, should be zero. Then only the body will be in equilibrium condition. Second, the moment of all the forces of acting on the body, that is rotation, should be zero. The most important line that I will tell you now, this will be the sum of anti-clockwise movement is equal to sum of clockwise movement. This is the only right, you can say, make it like a thumb rule. This rule we will be using to solve the numericals. This rule is we will be using to solve the numericals. So this is very important part. Okay, this is the only basic concept that we will be using, and we will be solving each and every type of numerical. सभी न्यूमेरिकल में ये तरीके का ये अप्लाई होने वाला है. सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल्स टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट.
So remember this, okay? Remember this, the storyline of this theoretical part was like sum of anticlockwise movement equals to sum of clockwise movement. Okay, now let us shift to the next part, that is our numerical section. Okay, now this was completely theoretical concept. Now we will be applying this theoretical concept, whatever we have learned we will be applying now. Okay, and this will be our practical base. So now welcome to today's lecture and today's important section. Okay, this is our important section. Okay, so a body is pivoted at a point. Let us start with the first question. I am reading a question for you. A body is pivoted at a point, a force of 10 Newton. A body is pivoted at a point. They are saying that it is pivoted. What does pivoted mean? It is combinedly somewhere joined. Okay, this is body is pivoted. The basic, I am taking very basic numerical first. Okay. Pivoted at a point, a force of 10 Newton is applied at a distance of 30 centimeter from the pivot. Okay. Calculate the moment of force about the pivot. Calculate the moment of force. Let us recall something that we have calculate. If I am saying moment of force, that is moment. What was the formula for the moment? Moment of force. You can say force, only moment. Okay. What was moment? It was force into distance. It was a force into distance. That was perpendicular distance. To be prescribed, it was perpendicular distance. This is sign of perpendicular. Okay. What was moment? Moment of force was force into distance. That is force into perpendicular distance, not distance. It should be perpendicular distance to be prescribed. So if they are saying the body is pivoted, so if I'm drawing a diagram for this, a diagrammatical representation seems to be like this. This is pivot. Okay, there is a body. This is a completely a horizontal body. What they are saying, a body is pivoted at a point. Let us consider point O. It is pivoted at point O. A force of 10 Newton is applied. Okay, a force of 10 Newton is applied. This is the force applied of 10 Newton. And what is saying? The distance is 30 centimeter. The distance for this is 30 centimeter. So calculate the moment of force. We know that force, the amount of force, we know the amount of distance, okay, the magnitude of distance, so we can calculate. But let me tell you one thing, students. First we have to convert the unit. The most important part when we solve the numericals are unit. The most important part is unit. Okay, so let us convert this unit. This is a standard unit for force. Okay, so given part, what is given? Force is given. Force is 10 Newton in the SI unit. Okay, and the distance you can say R or you can say D, whatever you want to use, 30 centimeter, but we want in SI unit, so it will be 30 upon 100. It will be 0.3 meter. It will be 0.3. This is point, okay. This is 0.3 meter. Now we have converted the distance between. So solution, moment we have to calculate, it is m f into r. So if I am solving this, m equals to f is 10, r is 0.3. Okay, so m will be, that is 3. Force will be, the unit will be Newton meter. The unit will be Newton meter. Okay, the unit will be Newton meter. Let me clear this, write in proper way. So moment m equals to 3 Newton meter. So this is the first numerical and the basic numerical, how we have to apply the formula of the moment of force, that is force into displacement. होप सो अब बच्चों सभी को क्लियर होगा. ठीक है, बहुत बेसिक कंसेप्ट है, पर मैं इसलिए ये बेसिक कंसेप्ट को इतना एम्फसाइज कर रहा हूँ या फिर इतने आराम से पढ़ा रहा हूँ. आई एम टेकिंग टाइम टू explain this because as we move further the level will be up for the numericals and you should be clear with the basic terms or the basic
theoretical concept or you can say a practical application. ओके जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स का लेवल भी बढ़ते जाएगा. चीजें क्लियर है? ओके ठीक है. Okay, now let us see the next numerical with a level up. Okay, so what is the next numerical? What is the question? I will read for you, students. A mechanic can open a nut by applying a force of 150 Newton while using a lever handle of length 40 centimeter. You know that a nut and a lever handle, that is we have seen over here. I will show you. It is somewhat like this. The question is like this. There is a nut. A mechanic is opening a nut by using a lever handle. Okay. A mechanic can open a nut by applying a force of 150 Newton by using a lever handle of length 40 centimeter. How long is handle required? Now see the question. The question is twisted. Okay. How long? They are asking how long. They are asking how long a handle is required if we want to open it by applying a force of 50 Newton. Means let us draw a condition for this. They are saying there is a nut. Okay, there is a nut somewhere here. Okay, mechanic is using to open this. He is applying some force of 150 Newton. Okay, and the lever handle for this is 40 centimeter. Now they are saying how long a handle is required. Now what will be the requirement of handle if you want to open the same nut by the same lever, but in this case the force you have to apply is only 50 Newton. So what will be the distance? What will be the lever handle? They are asking. So this is the question. होप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों. क्या पूछ रहे हैं कि एक नट है, एक मैकेनिक उस नट को ओपन कर सकता है बाय अप्लाइंग 150 न्यूटन, और जब वो 150 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है तो जो वो डिस्टेंस लीवर आर्म जो यूज कर रहा है दैट इज 40 सेंटीमीटर. तो ये बताइए कि सेम नट को अगर ओपन करना है और 50 न्यूटन का फोर्स अगर अप्लाई कर रहा है तो जो डिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा. सिंपल सी बात है, अगर फोर्स चेंज होगा तो डिस्टेंस भी चेंज होगा. बिकॉज व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर द मोमेंट? आई एम राइटिंग अबाउट द क्वेश्चन. यू कैन सी मोमेंट इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज आर. दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ओके, सो इफ फोर्स इज चेंजिंग, आर विल आल्सो चेंज. दिस इज सिंपल लॉजिक. ओके, नाउ वी विल सी हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. ओके, वी विल बी सीइंग हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट. ठीक है, कंसेप्ट पढ़ रहा है, लेवल अप है. ठीक है, लेवल अप क्वेश्चन है. ध्यान दीजिए. फर्स्ट केस के बारे में बात करते हैं जो हमने ड्रॉ किया, दैट इज फर्स्ट केस. फर्स्ट केस में क्या गिवन है? फोर्स इज गिवन दैट इज 150 न्यूटन एंड आर इज गिवन 40 सेंटीमीटर. इफ आई एम सेइंग आई हैव टू कन्वर्ट दिस विल बी 0.4 मीटर. लास्ट क्लास में, लास्ट न्यूमेरिकल में बताया था कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड बाय 100. ओके, तो इन दोनों कंडीशन से मोमेंट निकाल सकते हैं. इन दोनों कंडीशन से मोमेंट निकाल सकते हैं. यस, मोमेंट निकाल सकते हैं. दैट इज फोर्स इनटू डिस्टेंस. फोर्स कितना है? 150 इंटू डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस कितना है? 0.4. जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो दिस विल बी 60 न्यूटन मीटर. 60 न्यूटन मीटर का मोमेंट जनरेट हो गया. ध्यान दीजिए क्या हो रहा है? 60 न्यूटन का मोमेंट जनरेट हो रहा है. मतलब एक चीज हमें कंफर्म हो गई कि अगर हमें ये नट को ओपन करना है, अगर हम इस नट को ओपन करना चाहते हैं तो हमें मोमेंट कितना रिक्वायर्ड है? मोमेंट रिक्वायर्ड इज 60 न्यूटन. ये हम क्लियर हो गए. ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड केस में. सेकंड केस के लिए क्या है? सेकंड केस में क्या गिवन है? फोर्स इज गिवन 50 न्यूटन और डिस्टेंस हमें नहीं पता. वो पूछ रहे डिस्टेंस बताइए, पर हमें ये तो पता चल चुका है. वी नो दैट टू ओपन दिस नट we want or we have to apply the moment of 60 Newton meter. We have to apply the moment of 60 Newton meter to open this nut. This is confirmed. Okay, the one thing we have confirmed by using the first condition, that is the required moment. मोमेंट हमें पता चल गया कि मोमेंट हमें 60 न्यूटन का ही अप्लाई करना है. 60 न्यूटन मीटर का अप्लाई करने पे ही ये नट ओपन होगा. देन ओनली दिस नट विल बी ओपन.
तो हम क्या कर सकते हैं, द सेम सेम नट के बारे में बात करें, सेम मैकेनिक है, बस प्लायर को हमने चेंज कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमें मोमेंट सर पता है, मोमेंट हमें पता है कितना है, 60 न्यूटन मीटर, क्योंकि हमने सर फर्स्ट केस में कैलकुलेट कर लिया, वी हैव कैलकुलेटेड मोमेंट इन द फर्स्ट केस. So by applying the same law, same formula, m equals to F into R. We know the quantity of m, we know the quantity of magnitude of F, और R का वैल्यू हमें नहीं पता, तो we will calculate R. तो R हम कैलकुलेट कर लेंगे, R अगर हम कैलकुलेट करते तो कैसा हो जाएगा, R equals to 60 upon 50. This is R, okay, this is not a pi, this is R. So 0 0 cancel out. R will be 6 upon 5. This will be 1.2 meter or centimeter. This will be in meter. Why meter? Because moment is in Newton meter, so the radius will be in meter and force is in Newton. Hope so, bachcho, I'm clear. So in this case, the required distance is 1.2 meter. Now you can observe, if you are applying the greater force, the requirement of the distance will be small, 0.4 meter. If you are applying smaller force, the distance requirement will be more. This is the conclusion. More the force, less the distance. Less the force, more is the distance. So this is our, so this becomes our important question. Because in this part we have learned something different from the previous. होप सो बच्चों आपको क्लियर होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, लेवल अप था, ठीक है। अब फिर से हम एक लेवल अप करते हैं. वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ऑन द थर्ड क्वेश्चन, अ लेवल अप क्वेश्चन. ओके, वी आर ऑन द लेवल अप क्वेश्चन नाउ. वी आर राइजिंग आवर स्टैंडर्ड. ओके, सो लेट अस सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. On a seesaw, two children of masses 30 kg and 50 kg are sitting on one side of it at a distance 2 meter and 2.5 meter respectively from its middle. Okay, so let us see what is the condition, what the condition want to tell us. There is a seesaw. Okay, I will draw a seesaw for you students. This is seesaw. What they are saying, they are saying that two children are sitting of 30 kg. This is 30 kg. सिंपल सी बात है, इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, द डिस्टेंस विल बी डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, सॉरी, द वेट विल बी डाउनवर्ड डायरेक्शन. मास 30 kg and 50 kg on the one side at a distance of 2 meter. This distance is of 2 meter and this distance is of 2.5 meter. Clear? Okay, from the middle. Okay, let me tell you one thing students. This portion sometimes is also known as fulcrum. Sometimes the terminology they used for this joint, our pivoted, they can use the term as fulcrum. Okay. Okay, from the middle we have calculated the distance. Now what they are asking, where should a man of 74 kg sit to balance it? Of course we know that biological, to balance this two children, he has to sit on the other side of the seesaw. We all have sat on a seesaw and played. Okay, so we know that to balance this condition, a man should sit on a seesaw on the other side of the fulcrum, or I can say on the other side of that joint, middle. Okay, so let us consider this is 74 kg. Okay, now they are asking at what distance, means we don't know the distance for this. Let us take x. This is x. Mark with another. This is x. Okay, this is x distance. We don't know at what distance this man is sitting. Okay, we have to calculate the distance. Okay, so we have to calculate the distance at which this man is sitting. Okay, होप सो बच्चों आप सभी को क्लियर होगा कि मैं क्या है, कंडीशन क्या है. एक सीसॉ दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सीसॉ गिवन है, ठीक है.
सीसॉ में सेंटर में एक फलक्रम लगा है, जैसे कि आपने सीसॉ देखा होगा, और वो कह रहे हैं कि दो बच्चे हैं, एक 30 केजी और एक 50 केजी इनका मास है, जो सेंटर से 2 मीटर और 2.5 मीटर के डिस्टेंस पे बैठे हैं रिस्पेक्टिवली। व्हाट डज रिस्पेक्टिवली मीन्स? दैट रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि 2 मीटर का डिस्टेंस 30 के लिए है और 2.5 के लिए 50 का, मतलब फर्स्ट वेट, सेकंड वेट, फर्स्ट डिस्टेंस, सेकंड वेट, दिस टर्म्स रिस्पेक्टिवली का मतलब यही होता है। ओके, फिर सेकंड पार्ट में क्या कहे, वेयर शुड अ मैन ऑफ मास 74 kg सिट टू बैलेंस इट। हमें वेट गिवन है, हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे आते जो हमने लास्ट टाइम कंसेप्ट पढ़ा था, जो हमने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके न्यूमेरिकल के पर्पस के हिसाब से, दैट वाज दिस, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल्स टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट। याद होगा मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखिए इसका एप्लीकेशन आ चुका है। सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल्स टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट, बस ये रूल अप्लाई कर दीजिए, आपका क्वेश्चन यूं ही बन जाएगा। तो क्या कहता है यहाँ पे हम लिख देते हैं, सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल्स टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड बी इक्वल। अब इसको अप्लाई कैसे किया जाता है ये देखते हैं, ठीक है। लेट अस चेक दिस फलक्रम। अब फलक्रम के अगर लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो दो बच्चे बैठे हुए ऑफ मास 30 एंड 50, तो इनकी वजह से क्या होगा, मोमेंट जनरेट होगा। और मोमेंट क्या होता है, मोमेंट क्या होता है, मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही मोमेंट होता है। तो अब जो फर्स्ट चिल्ड्रन है, फर्स्ट जो दो बच्चे बैठे हैं ना, तो फर्स्ट की वजह से मूवमेंट जनरेट होगा। तो अगर मैं यहाँ पे जनरेट करता हूँ, सोल्यूशन पार्ट बता रहे हैं, सोल्यूशन कैसा होगा, फर्स्ट मूवमेंट, यहाँ पे दो बच्चे हैं तो मूवमेंट 1 प्लस मूवमेंट 2 शुड बी इक्वल टू ऑफ मूवमेंट 3। मूवमेंट 3 किसकी वजह से आएगा, दिस विल क्रिएट द थर्ड मूवमेंट, दिस विल क्रिएट मूवमेंट 1 एंड दिस विल क्रिएट मूवमेंट 2। मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू, तो फर्स्ट के लिए फोर्स क्या है, फोर्स इज ऑफ 30 kg की वजह से फोर्स जनरेट होगा, हाँ या ना, 30 kg की वजह से फोर्स जनरेट होगा नहीं होगा, चलो ठीक है, 30 kg है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितना है 30 का डिस्टेंस 2, तो ये हो गए m1 प्लस m2 कितना है 50 इंटू 2.5। सेंटर से ही हमेशा कैलकुलेट करना है, हमेशा सेंटर से। अब थर्ड के लिए क्या होगा, 74 का वेट है सर, पर हमें डिस्टेंस नहीं पता, तो लेट अस कंसीडर x, लेट अस कंसीडर x। चीजें समझ में आ गई कैसे लिखा है, सभी को क्लियर होगा। आप यहाँ पे एक पार्ट जोड़ सकते हो, F1 इंटू R1 प्लस F2 इंटू R2 इक्वल्स टू F3 इंटू R3, इस तरीके से एक लाइन जोड़ दीजिए आप, ठीक है, बन जाएगा, मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा कि कहाँ से आएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, 32 + 60 प्लस 50.2 विल बी 125 इक्वल्स टू 74 इंटू एक्स, 74 इंटू एक्स। ये कैसे क्या समझ में आ गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आप भी सोचे कि सर ये यहाँ पे आपने एडिशन किया, यहाँ पे क्यों नहीं, बिकॉज ये दोनों एक तरफ है ना, ये जो दोनों यहाँ पे आप यूज कर रहे हो, ये जो दोनों आप वेट जो है, ये दोनों एक कंडीशन है, बिकॉज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ये एक मूवमेंट जनरेट करेगा, ये एक मूवमेंट जनरेट करेगा लेफ्ट साइड से, फलक्रम की लेफ्ट साइड से जनरेट करेगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट करेगा। और जो दूसरा मूवमेंट है, जो दूसरा आपका जो राइट हैंड साइड का सेक्शन है, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट करेगा, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट करेगा, राइट हैंड साइड का सेक्शन क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट करेगा। होप्स आप सभी को क्लियर होगा क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है। मतलब कैसा होगा, अगर हम इसे देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके से मूवमेंट जनरेट करेगा क्लॉकवाइज, और ये कुछ इस तरीके से मूवमेंट जनरेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज। चीजें क्लियर है, तुमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को इक्वेट कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड का है उसका सबमिशन कर दिया, राइट हैंड साइड में एक ही है इसलिए इसको सिंगल रखा है, अगर दो होते तो हम उसका भी सबमिशन कर देते, ठीक है। अब इसे ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 185 इक्वल्स टू 74 इंटू एक्स, 74 इंटू एक्स। चीजें क्लियर है, अब इसे फिर से सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, दिस विल बी 185
डिवाइडेड बाय 74 इक्वल्स टू एक्स, ऐसा ही बनेगा, हाँ है ना। ठीक है, जब इसे हम डिवाइड करते हैं तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स टू बी कमिंग 2.5, दैट विल बी मीटर, 2.5 मीटर। मतलब क्या होगा, ये जो x है, x का डिस्टेंस कितना हुआ 2.5 मीटर। सो 74 kg के जो पर्सन है उसे कितने दूर बैठाना है, अगर वो 2.5 की मीटर की डिस्टेंस पे बैठते हैं फलक्रम से, तो ही विल बी इन अ बैलेंस कंडीशन ऑफ 50 and 30, इवन देयर आर टू डिफरेंट मासेस, और यहाँ पे भी डिफरेंट मास है। तो इस केस में जो आपको जो फलक्रम है वो कैसा हो जाएगा, सॉरी सीसॉ कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट सीसॉ बन जाएगा कुछ इस तरीके से। ये होगा 30, दिस विल बी 50 एंड दिस विल बी 74। ओके, तो ये सारी बेसिक कंसेप्ट थी, बहुत बेसिक। इस न्यूमेरिकल को आप फिर से बैक फॉरवर्ड करके स्टेप वाइज आप 3 to 4 टाइम देखिए। ओके, 3 to 4 टाइम्स इस न्यूमेरिकल को देखिए, इससे आपके कंसेप्ट बन जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे जब हम आगे बढ़ने वाले हैं तो आगे हमारी जो न्यूमेरिकल्स है उनकी क्वालिटी बढ़ने वाली है। यहाँ पे हम लेवल अप होने वाले हैं। हमने पहले ही कहा था कि हम जब लेवल अप न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, अब जब लेवल अप होगा तो हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है बहुत क्लियर होना चाहिए। तो इस न्यूमेरिकल में मैंने जितनी भी चीज़ें को एक्सप्लेन किया है फिर से रिपीट मोड में देखिए, और जितनी बार आप देख सकते हो उतनी बार देखिए, पर इसको समझिए। ठीक है, अगर नहीं समझोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो अब आते हैं फिर से एक लेवल अप। तो दिस इज अ फाइनल एंड लेवल अप क्वेश्चन, लेवल अप क्वेश्चन, लेवल अप क्वेश्चन। अब हम 4th लेवल पे आ चुके हैं यार, वी आर इंक्रीजिंग आवर लेवल। दिस इज अ 4th। ओ क्या हो गया, ये क्या हो गया, ओके अब ठीक है, ठीक है। ये है एक्चुअल लेवल हमारे एग्जाम का। हमारे एग्जाम में जो लेवल आता है, कुछ 3rd और 4th क्वेश्चन जो था इस तरीके का हमारा लेवल बनता है। ठीक है, जब पेपर डिफिकल्ट आता है तो इस तरीके का लेवल होता है, जब पेपर इजी होता है तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन था उस तरीके का लेवल आता है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ब्रश अप था। ठीक है, पर फर्स्ट क्वेश्चन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना 4th क्वेश्चन है। चलो अब देखते हैं 4th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4th क्वेश्चन क्या कहता है, पहले तो ये समझते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं। अ यूनिफॉर्म मीटर रूल। अब यहाँ पे एक एक चीज हम समझाएंगे, तो यहाँ पे ध्यान देना है। मीटर रूल जहां पे मेंशन हो चुका है, मतलब ये आपको डिफॉल्ट कंसीडर करना है कि एक रूलर है, एक रूल है, मतलब एक स्केल रखी हुई है जिसका लेंथ है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर क्यों, बिकॉज 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर, और 1 मीटर को ही कहते हैं मीटर रूल। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है, दैट इज इसे नोट डाउन करना है आपको। अगर कहीं पे भी आपको मीटर रूल दिखाई देता है तो मीटर रूल्स का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर का लेंथ है उस स्केल का, जिसे हम 1 मीटर भी कहते हैं। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट। अब सेकंड आगे पढ़ते हैं। रेस्ट हॉरिजॉन्टली ऑन अ नाइफ एज। नाइफ एज हमारे लिए क्या बन जाएगा, नाइफ एज हमारे लिए बन जाएगा फलक्रम। नाइफ एज हमारे लिए क्या बन जाएगा, दिस विल बिहेव लाइक एन फलक्रम। जैसे हमारा लास्ट क्वेश्चन में था सीसॉ में, यहाँ पे चेंज हो गया फलक्रम। एट ए डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर मार्क व्हेन अ मास ऑफ 10 ग्राम। यहाँ पे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट पार्ट 10 ग्राम। हम बहुत धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। 10 ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड, फ्रॉम वन एंड। क्वेश्चन को पढ़िए, हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो क्या कह रहे हैं, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट। सबसे पहले तो अरेंजमेंट का डायग्राम ड्रॉ करना है। चलो सबसे इंपॉर्टेंट काम हम अरेंजमेंट का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आप ये चीज़ें रूलर से बनाओगे, आप अपना स्केल से बनाओगे। तो अगर हम बनाते हैं तो किस तरीके से बनेगा, यहाँ पे देखिए। वो कह रहे हैं कि एक मीटर स्केल है। चलो ये बन गई मीटर स्केल, ये बन गई 100 सेंटीमीटर की मीटर स्केल, क्योंकि मीटर स्केल है तो ऑफकोर्स 100 सेंटीमीटर है। इसके बाद क्या कह रहे हैं, एंड रेस्ट ऑन अ नाइफ एज एट अ 60 सेंटीमीटर मार्क। मतलब अगर मैं कहता हूँ कि दिस इज 0 सेंटीमीटर, दिस विल बी 100 सेंटीमीटर। अगर मैं लेफ्ट टू राइट शुरू करता हूँ तो दिस इज 0 सेंटीमीटर, दिस इज 100 सेंटीमीटर। नाइफ एज कहाँ पे मार्क है, 60 सेंटीमीटर पे। चलो मार्क कर देते हैं 60 सेंटीमीटर पे। कहाँ मार्क करना भी, 60 सेंटीमीटर। मतलब कहाँ गया हमारा कर्सर,
ये चलो ये दिखाई नहीं दे रहा हमें, विजिबल लेना पड़ेगा। ओके, ये हो गया हमारा नाइफ एज। ठीक है, नाइफ एज को हमने थोड़ा ब्रॉड दिखा है। क्या कह रहे हैं, कहाँ पे मार्क्ड है, 60 सेंटीमीटर, मतलब ये हो गया 60 सेंटीमीटर। जहाँ पे 60 सेंटीमीटर आ रहा है वहाँ पे मार्क है। सिंपल सी बात है, 0 से 60 देखो ज़्यादा लेंथ दिख रहा है, 60 टू 140 का लेंथ है, तो हम सही है। और क्या कह रहे हैं, व्हेन अ मास ऑफ 100 ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड, किसी भी एंड में लगा दीजिए, उन्होंने कहा है वन एंड। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको लेफ्ट साइड के एंड में लगाना है या राइट साइड के एंड में लगाना है, आप जहाँ चाहे वहाँ लगा सकते हो। तो इसे अप्लाई कर देते हैं, कहाँ, राइट साइड में अप्लाई कर देते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, आप लेफ्ट साइड में भी कंसिडर करोगे। अब मास अगर आप टाई करोगे तो सिंपल से पता है, इसका जो वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। कितना वेट कह रहे हैं, 10 ग्राम कह रहे हैं। चलो 10 ग्राम कह दिया, ओके, ये बन गया। तो आपका फर्स्ट, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट, तो यहाँ पे हम क्लियर हो गए, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट बन चुका है, जो हम जैसे हमने पढ़ा वैसे बन गया। अब फर्स्ट क्या करें, एट विच एंड मस्ट दिस मास बी सस्पेंडेड, एट विच एंड एनी वन ऑफ देम इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड, है ना, तो किसी भी एंड पे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है, यहाँ पे कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, क्यों होगी भाई दिक्कत, 100 की तरफ लगा दीजिए। ओके, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है, व्हाट इज द मास ऑफ द रूलर। बताइए कि स्केल का वेट कितना है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये जो पार्ट है, ये बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं और आके भी गलती कर देते हैं। तो ऐसा क्या है इस पर्टिकुलर पार्ट में, ये समझते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं इतना एम्फोसाइज क्यों कर रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों, ये जानते हैं। क्या कह रहे हैं आप देखिए, व्हाट इज द मास ऑफ द रूल। कभी भी किसी ऑब्जेक्ट का अगर हम मास के बारे में बात करते हैं तो एक चीज हमने पढ़ा है, वो हमेशा सेंटर में लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ बॉक्स, मैं कह रहा हूँ इसका मास कैलकुलेट कीजिए, तो हम सेंटर से ड्रॉ करते हैं, दिस इज इट्स मास और वेट। इफ अ पर्सन इज स्टैंडिंग, तो व्हाट विल बी द वेट, किस पर्टिकुलर सेक्शन से वेट गुजरेगा, राइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ इट्स बॉडी। सेंटर ऑफ बॉडी से किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो हमेशा सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट से कैलकुलेट किया जाता है। ये याद रखिए, सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट, चाहे वो ऑब्जेक्ट कैसा भी हो, चाहे वो ट्रायंगल होगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसका सेंटर बना दीजिए, यहाँ से जो वेट गुजरेगा ये इसका वेट रहेगा। चाहे वो सर्कल हो, इसका वेट कैलकुलेट करना है, सेंटर से एकदम जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से आप इसके एक्सिस क्रॉस कर लीजिए। तो हमेशा याद रखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको वेट कैलकुलेट करना है तो वेट हमेशा ही और हमेशा उसके सेंटर से ही क्रॉस होता है। ठीक है, ये चीजें हमेशा याद रखिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे मास ऑफ द रूल, मास ऑफ द अगर रूल कह रहे हैं तो मतलब इसका मास रूल का कहाँ से पास होगा, सिंपल सी बात है, इसका मास पास होगा सेंटर से, सेंटर ऑफ रूल सेंटर से पास होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड, मास ऑफ रूल का मतलब क्या रहा है, वो कह रहे हैं कि सेंटर से कैलकुलेट करो। वही सेंटर कहाँ है इसका, इसका सेंटर तो आएगा सर 50 सेंटीमीटर, क्योंकि अगर 100 सेंटीमीटर का रूलर है तो सेंटर कहाँ रहेगा, सेंटर रहेगा 50 सेंटीमीटर पे। मतलब इसका जो मास है, मास ऑफ स्केल का रहेगा, मास ऑफ स्केल विल बी ऑन द 50 सेंटीमीटर। हाँ या ना, ये समझ में आ रहा है बच्चों, ये समझ में आना चाहिए आपको, ये समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे आगे लेवल अप होने वाली है और ये बहुत ज़्यादा आगे डिफिकल्ट होगा, तो इसे समझ में आना है। ठीक है, जब भी मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट पूछा गया है, यहाँ पे हमारे लिए जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो रूलर के ही बनते हैं, हमेशा रूल ही बनता है कि एक स्केल ही होगा, और मीट्रिक स्केल ही होता है। मीटर स्केल मतलब 100 सेंटीमीटर का रहेगा ही रहेगा। अगर मास पूछा है तो उसको 50 सेंटीमीटर पे लाई कर देना है। ठीक है, याद रखिए, हमारे इसमें हमेशा एक मीटर रूल के बारे में बात होगी। मीटर रूल मतलब 100 सेंटीमीटर के बारे में बात होगी। अगर 100 सेंटीमीटर के बारे में बात हो रही है तो उसका अगर हम मास पूछा जा रहा है कि बताइए उस रूल का मास कितना है, तो आपको याद रखना है कि उसका मास हमेशा सेंटर पे लाई करेगा। और एक मीटर स्केल का मतलब 100 सेंटीमीटर स्केल का सेंटर हमेशा 50 सेंटीमीटर होता है। चाहे वो फलक्रम कहीं पे भी लगा दिए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो नहीं सोचना है फलक्रम के बारे में। ठीक है, उसका जो वेट होगा वो कहाँ हो जाएगा, दैट इज इन ग्राम, मतलब मास यहाँ पे रहेगा, मास इन ग्राम रहेगा, क्योंकि ग्राम भी कैलकुलेट हो रहा है ना। चीज़ें क्लियर है। तो अब यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे हमारा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का रूल। क्लॉकवाइज मूवमेंट
इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। मैंने कहा था एक ही अप्लाई कर दीजिए, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये m के वजह से फलक्रम की तरफ मूवमेंट जनरेट होगा, ये 10 की वजह से भी फलक्रम की तरफ मूवमेंट जनरेट होगा, है ना, फलक्रम की तरफ ही मूवमेंट जनरेट होगा। m से फलक्रम की तरफ मूवमेंट जनरेट होगा, 10 से फलक्रम की तरफ मूवमेंट जनरेट होगा। तो अगर इसे हम लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, m, क्योंकि इसका हमें मास पता नहीं, हमें कैलकुलेट करना है, m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 40 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा m इंटू 10 इक्वल्स टू 40 इंटू, सॉरी पहले मास लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप पहले कुछ भी लिख सकते हो पर हम पहले मास लिखेंगे, 10 इंटू 40। अब आप सोचोगे सर आपने यहाँ पे कन्वर्ट क्यों नहीं किया ग्राम को केजी में, इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस भी तो सेंटीमीटर में है। अगर डिस्टेंस मीटर में होता तो हम मास को केजी में लेते, याद है ना, अगर मीटर है तो ये केजी रहेगा, अगर ये सेंटीमीटर है तो इसे ग्राम हम ले सकते हैं, बिकॉज दोनों लोअर यूनिट में, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा यूनिट की सेम लेवल होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर इसलिए हमने ग्राम में लिया, तो क्या हो जाएगा, m इंटू इस 10 को इधर इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा m इक्वल्स टू m इक्वल्स टू 10 इंटू 40 अपॉन 10, 10 कैंसल आउट, सो m is 40 gram. So what is the mass of the ruler scale? So mass of the ruler scale is 40 gram. So mass of the ruler is 40 gram. ये चीजें याद रखना है, मास ऑफ द रूलर इज 40 ग्राम। किस तरीके से कैलकुलेट किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो हमने बनाया है, ये जो सेक्शन बनाया है, यहाँ पे हमें ध्यान देना है। ठीक है, ये जो डायग्राम बनाया हमने बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को फिर से आप रिपीट मोड में देखोगे, इस क्वेश्चन को फिर से बहुत बार रिपीट मोड में देखोगे, ठीक है, जरूरी है देखना, जरूरी है देखना, ठीक है। अगर आप देखोगे नहीं तो आपको समझेगा नहीं, तो दिक्कत हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान देना है, इस क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार देखिए, क्वेश्चन को जितनी बार आप पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़िए, और कोई दिक्कत आता है तो बस पूछिए, जस्ट आस्क मी इफ यू हैव एनी डाउट, just ask me, okay, but don't create misconcept in your mind, okay. This will lead to destruction while solving the other numericals which we will be solving on the level up numericals in the next class, okay. So this is all from my side and thank you. Do revision.